میں احسان رضا مصباحی آپ سبھی کا نیوز اسٹوڈیو اردو میں خیر مقدم ہے۔ اس وقت میں دارالعلوم فدائیہ نوریہ پاچوریسیا میں موجود ہوں۔ یہ شمالی بنگال کا ایک قدیم اور مرکزی ادارے کی حیثیت یہ رکھتا ہے۔ اس ادارے میں آنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس ادارے کے اس دارالعلوم کے 3 ہونہار بچوں نے ایک نشست میں مکمل کلام پاک کو سنایا ہے۔ جی ہاں، صبح سے لے کر کے ابھی 3:30-4 بجے تک، جب تک ابھی آپ لائیو ٹیلی کاسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت جب لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے تب تک اس مدرسے کے 3 بچوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے مکمل کلام پاک کو سنانے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، دنیا کی تمام کتابوں میں قرآن پاک کو ہی یہ اعزاز اور اعجاز ہے کہ اس کلام پاک کو، اس کتاب کو بچے یاد کرتے ہیں، سینے میں محفوظ رکھتے ہیں اور ایک نشست میں پورے کلام پاک کو سنانے کا ہنر بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ان کو فیض میں ملتا ہے۔ دنیا کے ان تمام لوگوں کو، جیسے سویڈن ہو، ہالینڈ ہو، ڈنمارک ہو، وہ تمام لوگ جو قرآن پاک کی عظمت کو گھٹانے کی ناپاک، مذموم اور ناکام کوشش کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے، نظر آتش کر کے ہم قرآن کی عظمت کو گھٹا دیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کے تعلق سے خالق کائنات فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن پاک کو، بے شک ہم نے ہی قرآن پاک کو اتارا ہے اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جس کتاب کا محافظ وہ ذاتی باری تعالیٰ ہے، اس کتاب کی عظمت کو کیا کوئی گھٹا سکتا ہے؟ اور خاص بات یہ ہے کہ اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے پورے 30 پارے کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے نیوز اسٹوڈیو اردو کے پردے پر آپ اس مدرسے کے ساتھ ساتھ علاقہ یعنی اتر دناج پور شمالی بنگال کے جتنے بھی مدرسے ہیں، بیشتر مدارس سے ہم نے آپ کو یہ تصویریں دکھانے کی کوشش کی کہ بچے ایک نشست میں مکمل کلام پاک کا حفظ سناتے ہیں، یعنی منہ زبانی پورے کلام پاک کو سناتے ہیں۔ دیکھیے یہی وہ ادارہ ہے اور اپنے اساتذہ کے سامنے تمام بچے قرآن پاک کو سنانے کا جو شرف ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو چلتے ہیں کہ بعض دیگر بچوں کے پاس۔ تو جی ہاں ناظرین، دیکھیے یہ اپنے استاد کے سامنے یہ بچے ابھی کلام پاک سنا رہے ہیں اور تمام جو اس مدرسے کے بچے ہیں، ادھر کی تصویر بھی دیکھیے، ایک بچہ یہاں جو تصویر آپ نے دیکھی، ایک بچہ یہاں پر اور ایک بچہ ادھر، ہم یکے بعد دیگرے تمام کے پاس آپ کو لے کر جائیں گے اور اس جو بچہ پڑھ رہا ہے اس پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ آئیے بہت جگہ دیجیے، بڑا جگہ دیجیے۔ وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجلت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا۔ قرآن پاک کو بند کر دیجیے۔ تو جی ہاں ناظرین، یہی وہ خوش نصیب بچہ ہے، آپ بیٹھیے نا، بیٹھیے، یہی وہ خوش نصیب بچہ ہے جو اپنے استاد کے سامنے صبح سے کلام پاک کو سنا رہے ہیں اور تقریباً کلام پاک ختم ہونے کے قریب ہے، چونکہ صبح 6 ساڑھے 6 بجے انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا، ابھی تقریباً 4 بجنے کے قریب ہے، کل 8-8.5 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ 8.5 گھنٹے میں اس بچے نے اور ان کے علاوہ ان 2 بچوں نے پورے کلام پاک کو سنایا ہے۔ آپ کا نام بولے بتائیے۔ آپ محمد طاہر رضا۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اوجا پوہر۔ اوجا پکھر، بنگال نہ بہار؟ بنگال، اتر دناج پور ڈسٹرکٹ ہے جی۔ تو اب یہاں کب سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ اسی سال آئے۔ تو آپ کے استاد کا نام؟ حافظ قاری منظر صدیق۔ حافظ قاری منظر صدیقی صاحب۔ تو آپ تو ناظرین دیکھیے یہی وہ کیا نام بتایا آپ نے؟ طاہر رضا۔ طاہر رضا وہ سلمہ ہے، یہ وہ عزیزم ہے جس نے وہ شرف حاصل کیا، وہ اعزاز حاصل کیا ایک نشست میں پورے کلام پاک کو سنانے کا۔ واقعی بہت اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، دل سے خوشی ہوتی ہے اس طرح کے پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ہم ان کے استاد سے بات کر رہے تھے، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے دارالعلوم میں یہ بچہ طاہر رضا نے اور ان کے علاوہ 2 بچوں نے اور بھی کلام پاک کو صبح سے سنانے کا جو ایک اعزاز حاصل کیا ہے، اور یہ کارنامہ آپ لوگ پہلے بھی انجام دے چکے ہیں اور یہ مزید انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گا، تو کیا کہیں گے آپ اس تعلق سے؟ الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے اس قسم کا پروگرام دیکھنے کے بعد، اور بچہ جو ہے کافی محنت کیا ہے اور
क्या कहते हैं सुबह 6:30 बजे से जो है शुरू किया है, अभी 4 बजने को है। अब इंशाअल्लाह कुछ ही मिनट में जो है ख़त्म हो जाएगा। और दुआ है अल्लाह ताला से कि बच्चे को और मज़ीद तरक्की दे और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मौलाना शहरा साहब भी है, उनसे हम बाद में बात करेंगे। पहले आपको उन बच्चों के पास लेकर मज़ीद 2 बच्चे जो आज कुरान पाक सुनाने का जो एजाज़ हासिल कर रहे हैं, उन बच्चों के पास लेकर आपको चलते हैं। मैं भी मौजूद हूँ दारुल फिदाया नूरिया पाचुरेसिया इस्लामपुर थाना के तहत, ये गुंजरिया ग्राम पंचायत के तहत ये इदारा आता है। ये दूसरा बच्चा है जो अपने असतज़ा के सामने, और अराकीन भी यहाँ मौजूद हैं, उनके सामने अभी कलाम पाक सुना रहे हैं। وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما وفتر القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون وما قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تقل الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في السور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة. आपको बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, आप अपने उस्ताद के सामने कुरान पाक सुनाने का, ये हिफ्ज़ सुनाने का जो ये काम कर रहे हैं, ये दुनिया के उन तमाम लोगों के लिए एक चैलेंज है, और वो जहनियत उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कुरान की अजमत को घटाने की नापाक और नाकाम और मजमूम कोशिश करते हैं। आपका नाम बताइए पहले। मोहम्मद अतहर रज़ा। आपका घर? जी किशनगंज खोखसा। खोखसा जी गांव का नाम? खोखसा गांव का नाम है जी। डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, बिहार के रहने वाले आप हैं? जी बंगाल के। खोखसा किशनगंज तो बिहार के रहने वाले हैं। इस दारुल उलूम में आप कब से पढ़ रहे हैं इस मदरसे में? इस बार ही आए, मतलब रबीउल अव्वल के बाद। तो आप इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? मुंबई में। मुंबई में जी। तो यहाँ आकर के आपको पहले ये लग रहा था कि आप एक बैठक में कुरान पाक सुनाएंगे, ना यहाँ आकर ये हौसला आपको पैदा हुआ? जी यहीं पर आके हौसला अफजाई हुआ कि मैं यहाँ पे आके मतलब पढ़ाई देखा, माहौल देखा, फिर पता चला कि शायद मैं सुना सकता हूँ। तो आपने कोशिश की? जी। तो आप जो एक बैठक में कुरान पाक सुनाए, जी हम आपके उस्ताद से पूछेंगे आपने कैसा सुनाया है। जी। तो आप और बच्चे जो आपके साथी हैं जो यहाँ भी पढ़ रहे हैं, और हमारे न्यूज़ स्टूडियो उर्दू के जरिए बहुत सारे बच्चे भी देखेंगे, उनके गार्जियन देखेंगे, अगर वो भी चाहे कि नहीं हम भी कलाम पाक एक बैठक में सुनाएं, तो आप उनको क्या कहेंगे, किस तरह वो सुना सकते हैं? आप अपने अंदाज में जो आपको तरीका अंदाज बोलिए, आप बोलिए कुछ भी, मतलब आपको कैसा लगा? आप तो सुनाए, कोशिश किए ना आप, जिस तरीके से आपने कैसे पढ़ाई की, किस तरह कोशिश की, कब कब पढ़े, फिर कैसे उसको रिवाइज किए, कैसे कैसे याद किए, आप बताइए। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी इंसान अगर पढ़ेंगे, दिल लगा के अगर पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ हासिल होगा। इसलिए हर चीज़ के पीछे मेहनत की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ हासिल करना हो तो मेहनत करना है, बस मैं यही कहूँगा। अब अजान हो रही है, तब तक आप भी अजान सुन लीजिए। ये मंजर हम आपको यहाँ दिखाते हैं। बच्चों का चेहरा नजर आना चाहिए, कोई बच्चा छूट ना जाए। थोड़ा पीछे
روحانی کا بھی اعلان تو کر دیا ہے. تو ناظرین اذان ہو چکی ہے، عصر کی اذان ہو چکی ہے، جماعت کو ابھی وقت ہے اور ہم آگے کا سلسلہ اور جاری رکھتے ہیں. آپ کچھ بول رہے تھے، بتائیے. کوشش کرنے سے بولے. آپ جو پوچھے اس کا میں جواب دیا. یعنی کہ اگر کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں کوشش کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. اس لیے ہر چیز کے پیچھے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میں شاید محنت کیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فضل مطلب یہ اپنے فضل و کرم سے مجھ پر یہ رحمت کی بارش برسائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچے نے بہت پیاری بات کہی ہے. اور ناظرین، ہم نے آپ کو نیٹ کوالیفائر اس کے علاوہ جو IAS کے انٹرویو بھی ہم نے نیوز اسٹوڈیو اردو کے ذریعے آپ تک پہنچائے ہیں. اس طرح کا پروگرام دکھا کر ہم کو دلی خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن پاک جو 30 پارے ہیں اور کئی ہزار اس میں حروف ہیں اور لاکھوں اس میں لیٹرز ہیں، ان تمام چیزوں کو سینے میں محفوظ کرنا واقعی یہ خدا کی طرف سے رحمت ہی ہے، اور جو یہ جھلک کر ابھی سامنے آ رہی ہے. ہم چلتے ہیں تیسرے بچے کے سامنے اور ان سے بھی پوچھیں گے. باقی اس کے بعد جو ان کے اساتذہ کرام ہیں ان کا بیان لیں گے اور انہوں نے کس طرح بچوں نے پڑھا ہے اور ان کے اس محنت کے پیچھے کیا کیا کرامت ہوئی ہے. دیکھیے وہ تیسرا بچہ ہے یہاں جو اپنے استاد کے سامنے ابھی کلام پاک سنانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها. آپ کا نام بولیے پہلے. محمد راقب رضا. راقب رضا جی. گھر کہاں ہے آپ کا؟ کول تھا چھترگاچھ بہار. جی. آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد صلاح الدین. محمد صلاح الدین. آپ کے استاد جن کے پاس آپ نے حفظ کی ہے؟ قاری ارشاد عالم معتد. قاری ارشاد عالم معتد ناجپوری جو شاعر اسلام ہے. جی. آپ ان کے پاس زانیہ تلمس طے کیے ہیں اور آج آپ ان کا فیض لے کر اور اللہ کا کرم لے کر کے ایک نشست میں صبح سے کلام پاک سنا رہے ہیں. جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک بیٹھک میں قرآن پاک سناؤں گا، تو یہ فیصلہ آپ کو دل میں کیسی کب یہ بات آئی کہ میں بھی سنا سکتا ہوں؟ آپ نے یہاں وہ کیسا ماحول پایا اس تعلق سے بتائیے. پہلے اپنے الفاظ میں بولیے جس طرح آپ کو آتا ہے بولیے. چلیے. تو یہاں آپ نے دیکھا، کیسا ماحول دیکھا، اس کے بعد بولیے. اچھا لگا ماحول. دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا میں بھی سنا سکتا ہوں؟ جی ہم بھی سنا سکتے ہیں. محنت کیے، پڑھے. جی اساتذہ کی دعا کے لیے. اور چلیے یہ صبح سے چونکہ ابھی سنا رہے ہیں کلام پاک بعد فجر، ابھی تقریباً 4 بج گئے ہیں، 4 بجنے والے
वाले होंगे और ये बच्चा कलाम पाक सुबह से सुना रहे हैं और ख़त्म होने के करीब है। हम इनके उस्ताद से पूछते हैं हज़रत आपका खैर मकदम है न्यूज़ उर्दू में। बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको भी हम बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करते हैं कि आपके ये तालिब इल्म के अलावा 2 तालिब इल्म और हैं जिन्होंने एक बैठक में कलाम पाक सुनाने का शरफ हासिल किया है। तो सबसे पहली चीज़ आप कारी साहब को ये बताइए कि ये जो माहौल आपने बनाया है एक बैठक में कलाम पाक सुनाने का, तो वो माहौल आपने किस तरह बनाया है ताकि वो बताइए ताकि दूसरे मदारिस के लोग भी इस माहौल को अपने मदरसे में लागू कर सकें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल फिदाया नूरिया पाचुरसिया ये पूरे उत्तर दिनाजपुर में एक मरकज़ी हैसियत ये इदारा रखता है। तो मुझसे आने से पेशतर भी ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हुफ़ाज़ किराम को ये निकाल चुके हैं और एक बैठक में इससे पहले भी ये रवाज यहाँ पर जारी था। उसी रवाज को उसी कड़ी को बरकरार रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर भी ये दिलचस्पी पैदा हुई कि नहीं इस कड़ी को हमें बाकी रखना है। तो हम लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के अंदर एक जज्बा वो शौक़ बाकी रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी का नतीजा है कि ये बच्चे उस कड़ी की कड़ियों में कड़ी मिलाते हुए आज ये नतीजा हमारे और आपके सामने निकला कि अजीज़म हाफिज़ राक़िब, अजीज़म हाफिज़ अतहर, अजीज़म हाफिज़ ताहिर जैसे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कुरान पाक को एक बैठक में सुनाने का एजाज़ हासिल किया। हम मुबारकबादी पेश करते हैं इन तमाम के वालिदैन को जिन्होंने अपनी मेहनतों के ज़रिए, हालांकि मैं बता दूं ये बच्चा, इस बच्चे का वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। लेकिन 2 बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे गुर्बत की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन एक बात इसके वालिद साहब नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने ये साबित कर दिया कि वालिद का ना रहना ये अजीम बड़ी बात नहीं है, बल्कि उनके ना रहते हुए मैं उनके लिए ज़िंदगी भर उनके लिए ज़रिया नजात बन जाऊं, एक ऐसा काम कर जाऊं जिससे मेरे वालिद साहब को ज़िंदगी भर कब्र में और आखिरत में उनको सवाब मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा हाफिज़ कुरान बन करके ये साबित कर दिया। और दूसरी बात, गुर्बत हमारे इलाके में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गुर्बत की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर अगर वालिद साहब गुजर जाएं तो उनको फिर उसके ऊपर दस्ते शफ़क़त फैलने वाला कोई नहीं रहता है। लेकिन एक ज़िंदा मिसाल यहाँ मैं आपको दूँ, ये मास्टर शादाब साहब हैं। जब इनके वालिद साहब गुजर गए तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस बच्चे की किफ़ालत की पूरी ज़िम्मेदारी ली और किफ़ालत की पूरी ज़िम्मेदारी लेते हुए इन्होंने निभाया नहीं बल्कि एक सरपरस्त की हैसियत से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये ज़िम्मेदारी पूरी की और आज इनकी लगन, इनकी मेहनत ये रंग लाई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चा इस नतीजे पर पहुँचा कि कुरान मुक़द्दस पूरा एक बैठक में सुनाने का एजाज़ हासिल किया। हम इन्हें भी मुबारकबादी पेश करते हैं। आपका नाम बोलिए तो? मेरा मोहम्मद शादाब अहमद। शादाब, आप इनके क्या लगते हैं? मैं इनके भाई लगता हूँ। भाई हैं। इनके वालिद साहब नहीं हैं, आपने इनको पढ़ाया लिखाया, इनके खर्चा आप उठा रहे हैं और आज हाफिज़ कुरान बन भी गए हैं और इसके साथ साथ इन्होंने पूरे कुरान को आज एक नशिस्त में सुनाया है। जी। तो चूंकि आपने इनका खर्चा उठाया है, आपको कैसा लग रहा है अभी? कैसी खुशी है या क्या है? ये खर्चा के मतलब नहीं है। सबसे पहले ये मुझे अपना एक ऐसा चीज़ दे दिया आज मुझे कि मैं इसका अपने दिल से बयान खुशी कि ये कहने का सकता हूँ कि मुझे कितना एहसास हो रहा है अभी कि मैं बच्चे के पीछे मैंने आज तक नहीं, 7 साल से मेरे पास है, 7 साल के थे उम्र के उस वक्त से। तो मेरा ख्वाहिश पहले से ही था कि मेरे बच्चों को हाफिज़ बनाऊँगा और मेरे उम्मीद में ये भी बच्चा मेरे साथ दिया कि मेहनत किया। मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं क्या किया इसके लिए? कुछ भी नहीं, लेकिन मेहनत ये किया इसका। अच्छा शादाब भाई, ये हाफिज़ कुरान ही बने हैं, इसके अलावा और भी पढ़ाई बाकी है? अगर ये इस्लाम में पढ़ना चाहें आगे और भी खर्चा हो सकता है, आप बाहिम्मत हैं? मैं हिम्मत हूँ उसके लिए। मैं इसलिए बोल भी दिया आज मैं कि आज आपके हाफिज़ कंप्लीट हो गए, अपने दस्ता लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आपका जो अगले साल आपका आएंगे उसमें आपको कारी बढ़ना है, कारी बनने के साथ फिर मौलवी बनना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हाफिज़ राक़िब रज़ा की तरह बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज़हीन भी होते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन शादाब जैसे लोग और आप जैसे लोग और भी बहुत सारे तरह के लोग हो सकते हैं जो इस तरह के बच्चों की किफ़ालत करके इनके तालीम और ताल्लुम का एक ज़रिया बन सकते हैं। आइए हम दूसरे असतिज़ा किराम से बात करेंगे और उनकी राय भी लेंगे। तो नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ दारुल फिदाया नूरिया पाचू रसिया
यहाँ भी तमाम असतिज़ा किराम अराकिन मौजूद हैं। हज़रत खड़े हो जाइए तो अच्छा रहेगा, खड़े हो जाइए। सबसे पहले कारी साहब आप ही बताइए, आपके दरसगाह में भी एक बच्चे ने कलाम पाक सुनाया है, तो आप अपना तासुर क्या देंगे इस ताल्लुक से? ये तीनों बच्चे जो है 3 दरसगाह के हैं और मेरे दरसगाह का तालिब इल्म वो बादे जलसा सुनाने वाला है। अच्छा हाँ। एक बच्चा कारी शाह साहब का है जिसका नाम मोहम्मद राकिब रजा है और जी हाँ। एक बच्चा कारी इम्तियाज साहब का है जिसका नाम अतहर रजा है और एक तालिब इल्म जो है कारी मंजर सिद्दीक साहब का है जिसका नाम मोहम्मद ताहिर रजा है। माशाअल्लाह तीनों बच्चों ने बहुत बेहतरीन सुनाया और इन बच्चों ने बहुत मेहनत की। अच्छा। और मैं तो कहूँगा इसके बाद जो बच्चे भी सुनाने वाले हैं वो खूब मेहनत करें। इंशाअल्लाह ताला कोई भी बच्चा इस तरीके से सुना सकता है अगर वो मेहनत को अपनी जारी रखे और हौसला पस्त न करे। शोबा हिफ्ज़ में टोटल कितने बच्चे आपके इदारे में? हमारे शोबा हिफ्ज़ में कुल 120 बच्चे हैं। 120 बच्चे हैं। इस बार दस्तार कितने बच्चों की है? दस्तार जो है इस बार हमारे इसमें तकरीबन 31 बच्चों की हो रही है दस्ताबंदी। जी। तो 3 बच्चे सुनाए हैं, बाकी और भी 28 बच्चे बाकी हैं। हाँ। तो उन बच्चे के अंदर आप इस तरह से क्या बेदारी पैदा करना चाहेंगे या कर रहे हैं या क्या आपका प्लान है? बिल्कुल क्या कहते हैं कि उनको मैं यही कहूँगा कि आप भी मेहनत करें, इंशाअल्लाह ताला आप भी सुना सकते हैं अगर आप मेहनत जारी रखेंगे तो। बहुत शुक्रिया। यहाँ देखिए नाज़िम तालीमात हज़रत अल्लामा मुफ्ती साबिर आलम मिसबाही साहब मौजूद हैं और इस इदारे के एक अच्छे मुद्दरिस भी हैं। हज़रत आपके इदारे में 3 बच्चों ने एक नशिस्त में कलाम पाक सुनाया। ये कुरान की अजमत भी है, कुरान का एजाज़ भी है, कुरान का एजाज़ भी है, आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों बच्चे सुबह नमाज फजर पढ़ने के बाद तकरीबन 6 बजे ये अपने अपनी दरसगाह में बैठे और मैं बहैसियत नाज़िम तालीमात तीनों दरसगाह का जायज़ा लिया और तीनों बच्चों के पास बैठ कर के मैंने कुरान मुक़द्दस को सुना। तीनों बच्चे कुरान शरीफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, सुनने में भी मुझको मज़ा आया और दीगर हमारे दारुल के असतिज़ा भी थे वो भी सुने। तो अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत खुश हुई और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरीके से दीगर तलबा को के अंदर भी अल्लाह ताला जज्बा और शौक़ पैदा करे कि एक बैठक में वो कुरान मुक़द्दस को अच्छी तरीके से पढ़ सके। तो ये जो बच्चे सुनाए उन बच्चों दस्तारबंदी भी है, दस्तारबंदी का प्रोग्राम कब रखे हैं? दस्तारबंदी का प्रोग्राम 15 फरवरी को रखा गया है। इसमें दर्जे आलिमियत के 13 बच्चे हैं और शोबे हिफ्ज़ से 18 बच्चे। दर्जे आलिमियत के जो बच्चे हैं तो उनकी जो है दस्तारबंदी भी होगी और दर्जे मौलवियत के दर्जे हिफ्ज़ के भी बच्चों की दस्तारबंदी होगी। लेकिन इसमें जो है हमारी जो दर्जे मौलवियत के तलबा हैं, शायद आपको ये मालूम नहीं होगा, मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ आपके ज़रिए से कि हमारे दर्जे मौलवियत की जो तलबा हैं वो 100 हदीस याद किए हैं। इससे पहले इस तरह से नहीं होता था, मगर हदीस रवायत के साथ जी हाँ रावियों के साथ और हवाला के साथ वो 100 हदीस याद किए हमारे निसाब में ये दाखिल किया गया है। वो तलबा जो है इंशाअल्लाह वो भी प्रोग्राम रखेंगे और इंशाअल्लाह आपके ज़रिए से फिर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। किसी भी बच्चे से 100 हदीस में से आप कुछ भी कहीं से भी उनसे पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह बहुत से खूबी वो आपको जवाब देंगे। तो उनका भी प्रोग्राम रखा गया है। 100 हदीस हिफ्ज़ करना उनके लिए लाजिम है जिनकी यहाँ दर्जे मौलवियत में दस्तारबंदी होगी। और शोबे हिफ्ज़ में जो 18 तलबा की दस्तार है, इसमें हम लोग का तरीका ये रहा है कि जो बच्चा एक बैठक में जो है पूरे कुरान को सुना देता है, एक तो है तकरीरी और तहरीरी जो इम्तिहान ये हो चुका है, उसमें फिर अव्वल दम पोजीशन हासिल किए हैं। फिर उसके बाद ये ऑप्शन रखा गया है कि जो बैठक सुना देगा और पहले बैठक सुनाएगा उसको 1 नंबर पे दिया जाएगा। तो इसमें 3 बच्चे आए, तो अब फिर चूँकि चश्मा इम्तिहान में वो अच्छे नंबरात हासिल किए, उसमें भी नुमाया नंबर उनके रहे और इसमें फिर वो जो है एक बैठक में पूरे कुरान मुक़द्दस को सुनाए। तो जो बच्चे सबसे पहले कुरान ख़त्म किए और फिर नुमाया नंबर उनका पहले रहा तो उनको 1 नंबर पे दस्तार दी जाएगी, उसके बाद फिर दूसरे को, उसके बाद तीसरे को, उसके बाद दीगर तलबा जो बैठक नहीं सुनाए उनकी दस्तारबंदी होगी। ये हमारे यहाँ का मामूल रहा है कि जो बच्चा भी बैठक सुना देगा और पहले सुनाएगा उसको 1 नंबर पे हम लोग दस्तार देते हैं। तो नंबरिंग के अलावा बच्चे की हौसला अफजाई के लिए कुछ इनामात वगैरह भी उस बच्चे के लिए मुहैया करता है? जी, इनामात भी कमेटी की तरफ से इनामात भी दिए जाते हैं, तलबा की तरफ से भी, असातिज़ा की तरफ से भी। उन बच्चों को
इनामात दिए जाते हैं और काफ़ी हौसला अफजाई भी की जाती है। उन इनामात उन बच्चों को क्या ज़रूरत है, बल्कि वो बच्चे जो एक बैठे में कुरान मुक़द्दस को सुना देते हैं, तो उनके लिए तो यही सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम है। ये थे मुफ्ती साबिर आलम साहब जो अपनी बातें बहुत अच्छे अंदाज में रख रहे थे। हम बात करेंगे यहीं के एक बेहतरीन मुवक्कर उस्ताद मौलाना शेर आलम। इधर हजरत हजरत लोगों ने बता दिया है कैसा पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा, तो आप ये बताएं कि इस वक्त आलमी सतह पर जो कुरान की अजमत को हटाने की जो नापाक कोशिश हो रही है, हुर्मत कुरान और कुरान की बेहुरमती होती है, कुरान को नजर आतिश किया जा रहा है, ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे जो इस तरह के छोटे छोटे बच्चे कुरान को याद करते हैं, सुनाते भी हैं? ये इस तरह का अमल उन लोगों के लिए कैसा जवाब रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दिखाते भी हैं हर मदरसे के मनाजिर जहाँ जहाँ भी बच्चे ये एजाज़ी कारनामा अंजाम देते हैं और कुरान मुक़द्दस को एक नशिस्त में सुनाने का शर्फ हासिल करते हैं। ये कुरान अज़ीम अल्लाह ताला की सबसे बड़ी अमानत है कि इस अमानत का बोझ उठाने के लिए तमाम मखलूक़ात ने इनकार कर दिया था, मगर ये कि कुरान और साहिब कुरान का ये एजाज़ है कि ये इतनी बड़ी अमानत कि जिसको उठाने के लिए तमाम मखलूक़ात ने इनकार कर दिया था, हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने सीनों में इस बड़ी अमानत को महफूज कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है और ये कुरान और साहिब कुरान का एक एजाज़ है। और मैं ये आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहूँगा कि अभी जो हालिया स्वीडन में मुज़म्मत और अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि कुरान पाक को वहाँ जलाने की बार बार कोशिश की गई और लोगों ने अपने पैरों तले रौंदा भी, और यूरोपियन ममालिक का ये रवैया शुरू से ही रहा है कि वो लोग वक्फा इस्लाम मुखालिफ ताकतों का मुजाहरा करते हैं और दुनिया में इस्लाम की छवि को दागदार करने की और मज़हब इस्लाम को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक उन लोगों का जो ताल्लुक़ है वो इस बात से है कि मज़हब इस्लाम को जैसे भी हो इनका नाम घटाया जाए, मज़हब इस्लाम को लोगों के सामने इनकी छवि को दागदार बनाया जाए। तो इस तरह के वो अफसोसनाक वाक़यात अंजाम देते रहते हैं। जिस तरह अक़वाम मुत्तहदा एक आलमी तंजीम है, इस तरह जो बड़ी तंजीम है, इन तमाम तंजीमों को आगे आना चाहिए और जितने भी मज़ाहिब है, अक़वाम है, मिलल है, उनके जो मुक़द्दसात हैं, मोहतरम चीज़ें हैं, उनको महफूज करने के लिए यकीन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ताकि यूरोपियन ममालिक जो अपने आप को मुतदिल और अच्छे अखलाक के हामिल गर्दानते हैं और कहते हैं कि हम मुतदिल नज़रियात के हामिल है और हम जमहूरी अक़दार के हामिल है, लिहाजा उनको भी ये चाहिए कि जो मजहबी मुक़द्दसात है या मजहबी मोहतरम चीज़ें हैं, उन चीज़ों को जलाने की या उन चीज़ों को पैरों तले रोनने की या उन चीज़ों को खाक आलूद करने की कोशिश ना करें। जैसे कि अभी हालिया दिनों में कुरान को जलाने का वाक़या पेश आया, इससे ना सिर्फ ये कि मजहब इस्लाम की तौहीन की गई या कुरान की बेहुरमती की गई, बल्कि हम जैसे लाखों करोड़ों मुसलमान के जज्बात और हसासियत को ठेस पहुँचाया गया। ये वाक़या वाकई काबिल मज़म्मत है और अफसोसनाक भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग जो कुरान की बेहुरमती करते हैं, ये कुरान को नजर आतिश करने की नापाक कोशिश करते हैं, इससे तो आप मुसलमानों की दिल आज़ारी कर सकते हैं, मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुरान की अजमत में बाल बांका नहीं कर सकते, कुरान की अजमत में आप उंगली नहीं रख सकते, क्योंकि इसका मुहाफिज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही हैं जिसने कुरान को उतारा और बेशक हम ही हैं जो कुरान की हिफाजत करते हैं। बेशक नाज़रीन, बड़ी खुशी की बात है कि जो बच्चे आज इन्होंने इस मदरसे में, इस दारुल में जिन बच्चों ने कुरान पाक को एक बैठक में सुनाया, बड़ी खुशी की बात है। यहाँ तीनों बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। आप आगे से आगे तक से आइए। ये यहाँ बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, ये दो बच्चे यहाँ मौजूद हैं और 3 बच्चे ने सुनाया है आज दारुल के बच्चों ने। हम यहाँ एक जनाब हैं इस मदरसे के अराकिन में से, हालांकि मास्टर महबूब अहमद साहब चूँकि अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से कहीं हैं, इनके अलावा दीगर जो अराकिन यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले बात, आपके इदारे में दारुल में इन उस्तादों की मेहनत का ये समरा है कि बच्चों ने एक नशिस्त में कलाम पाक सुनाया, इससे पहले भी सुनाया है, तो कमेटी का मेंबर होने के नाते आपके दिल में क्या इस वक्त चल रही है, बताइए। कमेटी का मेंबर होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हमारे तमाम असातिज़ा के बहुत ही ज़्यादा मेहनत है और उन लोगों का जो है बच्चों पर बहुत ज़्यादा शफकत है कि बच्चे जो हैं उन लोगों की इस हरकत से कुरान पाक को एकदम निडर होकर सुनाए 3 बच्चों ने। हम लोगों को बड़ी खुशी हुई इन बच्चों के, ये तीनों बच्चों की कलाम पाक सुनकर। हम लोग यहाँ बैठे हुए थे,
हमारे काजी साहब इलाके के बुजुर्ग वो भी बैठे हुए थे। उनकी मौजूदगी में तीनों बच्चे ने कुरान 30 पारे कुरान शरीफ को एक नशिस्त में सुनाया। बड़ी खुशी हुई और तमाम मेहनतों की तमाम उस्तादों की काफी मेहनत है। नाम बोल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद औरंगजेब है और मैं इनके जरिए अभी आने वाले 15 फरवरी 2023 बरोज बुध को तकरीब रूहानी व तज़किरा खिदमत हुजूर अली का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है बाबू हुजूर की क़यादत में। इसलिए मैं अभी तमाम आने वाले तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप 15 फरवरी को जरूर दारुल उलूम फिदाइया नूरिया पाशुर रसिया तशरीफ लाएं। और बाबुजुर्ग तो रहेंगे, मुकर्रर खसूसी के तौर पर कौन है? और हमारे यहाँ पर मुकर्रर खसूसी के तौर पर अभी नामुस रिसालत मुजाहिद अहले सुन्नत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब माशाल्लाह। हाँ, तो उनकी मौजूदगी में आप हजरात को आना है और बिला झिझक उनकी तकरीर समाप्त करनी। 15 फरवरी 2023 बरोज बुध। देखिए नाजरीन, ये तीनों बच्चे यहाँ आ गए हैं और इन बच्चों की गुलपोशी की गई है, असतज़ा इकराम की गुलपोशी की गई है। और देखिए इधर भी देखिए जो बच्चे सुनाए हैं अपने असतज़ा को गुलपोशी कर रहे हैं। और ये जो बच्चे सुनाए वो भी यहाँ मौजूद हैं। दावत पेश करने के लिए। अच्छा ठीक है, पेश कर दें। काजी साहब, आप बड़े बुजुर्ग आदमी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके मदरसे में बच्चों ने 3 बच्चों ने एक बैठक में पूरा कुरान सुनाया, ज़बानी सुनाया, क्या कहेंगे आप? ये जो है सुबह से हम आए, तीनों जो बच्चे सुनाए बैठक, तीनों का सुने। बहुत तेजी से बच्चा जो है जो मेहनत किया और कामयाबी हुआ उन लोगों का। और मदरसा का जो मुदर्रिस कारी साहब हैं, ये लोग भी मेहनत किए हैं। इसी का ये जो है कामयाबी है उन लोगों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मदरसे में जलसा है 15 फरवरी को, लोगों को क्या कहेंगे आप लोग जरूर तशरीफ लाएं। 29वां जो है रूहानी बाबा का तकरीब है। इसमें जो है हुजूर अली का खिदमत अंजाम है। इसीलिए हम सबको दावत देते हैं जो 15 फरवरी को आप लोग आइए और सलमान अजहरी साहब का तकरीर सुनिए, मुफ्ती सलमान अजहरी का। और बाकी जो है हुजूर अली रहेंगे और बाबू हुजूर का लड़का भी रहेंगे। आप आकर के तो उनका जो है फैज लिए बाबू हुजूर रहेंगे। मेरी भी खुशी कर दी। तो नाजरीन, बड़ी खुशी की बात है और ये कुरान का एजाज़ है कि मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने आया। यहाँ के मुशफिक असदज़ा ने हमारी भी गुलपोशी कर दी। अब इधर से देखिए तमाम असदज़ा इकराम यहाँ खड़े हैं और ये अराकीन भी मौजूद हैं और यहाँ तीनों बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। आप चूँकि इरशाद भाई, आप चूँकि एक नात ख़्वाह भी हैं और आपकी आवाज़ भी अच्छी है, तो अज़मत कुरान और हिफ्ज़ कुरान के ताल्लुक़ से 2 शेर आप पढ़। 2 शेर पढ़िए माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं एक बात बता दूं, यहाँ जो भी प्रोग्राम होते हैं, ये मदरसा मस्जिद या जो भी चीज़ें हैं, ये सब सरकार रूहानी बाबा अलैहि रहमतुर रिज़वान का करम है। उनके वसीले से हमें हुजूर आली नसीब हुए, सरकार बाबू हुजूर नसीब हुए और ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, जिससे हम लोग जुड़े हैं, सब जुड़े हैं अक़ीदतमंद। ये सिलसिला उनके ज़रिए से यहाँ तक आया। मैं उसके ताल्लुक़ से पहले एक शेर सुनाना चाहता हूँ, समाअत करें। कि हाफिज भी बनाए जाते हैं, हाफिज भी यहाँ पर बनते हैं, आलिम भी यहाँ पर बनते हैं। हाफिज भी यहाँ पर बनते हैं, आलिम भी यहाँ पर बनते हैं। हाफिज भी यहाँ पर बनते हैं, आलिम भी यहाँ पर बनते हैं। किरदार अमल चमकाए जो, किरदार अमल चमकाए जो, रसिया में ऐसा इदारा है। ये फैज़ रूहानी बाबा है, ये
فیض روحانی بابا ہے، یہ فیض روحانی بابا ہے، یہ فیض روحانی بابا ہے۔ اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فقط 2 شعر میں پڑھ دے رہا ہوں، سماعت کریں۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ، جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا، جو خوش نصیب حافظ۔ اور وہ ماں جی اس کو جلا سکے گی نا دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نا، اس کو جلا سکے گی نا دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا، محفوظ جس کے فدائیہ نوریہ پاچو رسیا، دارالعلوم فدائیہ نوریہ پاچو رسیا، تقریب روحانی فیضان حضور علی، فیضان بابو حضور، سبحان اللہ۔ اس موقع پر ہم اپنے تمام اراکین، منتظمین، معاون کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تو ناظرین، آپ نے بچوں کے ذریعے ایک نشست میں کلام پاک بھی سنا، کچھ لمحے سنے، اور قاری صاحب کے زبانی آپ نے نعت بھی سنی اور منقبت اور بچوں کے حوصلہ افزائی کے انہوں نے کلام بھی پڑھا، اور ان کے اساتذہ کرام کے زبانی آپ نے قرآن کی عظمت اور ان کے ادارے میں جو ماحول ہے ان ماحول کو بھی آپ نے سنا۔ تو بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیں تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ وہ جس قرآن کو مٹانے کی وہ ناپاک کوشش کرتے ہیں، جس قرآن پر انگوش نمائی کی وہ ناپاک کوشش کرتے ہیں، اس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے پورے قرآن کو سینے میں محفوظ بھی کرتے ہیں اور ایک بیٹھک میں قرآن پاک سنانے کا ہنر بھی رکھتے ہیں۔ بس اس ویڈیو کو آپ آگے تک پہنچائیں۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اوپر فالو بٹن ہے، اس کو دبا لیجئے۔ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو دبا لیجئے۔ بس ہم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔